हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक डिक्टेशन दे रहा हूँ लीगल पैसेज की। और ये उसकी स्पीड होगी जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है उस हिसाब से होगी। और ये पैसेज या ऐसे पैसेज और भी जो होंगे लीगल के, वो आपकी किसी भी स्किल एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोर्ट में कोई सिलेबस नहीं होता। ऐसे पैसेज जो होते हैं लीगल, वो किसी भी लीगल आपके हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी ये पैसेजेस आपके काम आएंगे। और डिक्टेशन के बाद में मैंने जो भी आउटलाइंस मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट लगी हैं, मैंने उनके आपको आउटलाइंस भी दिखाई हैं, और जहां मैं समझा सका तो मैंने समझाया भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आउटलाइंस को आप पहले मत देखिएगा, आप पैसेज को करिए। अनसीन की तरह जैसे है आपके लिए पैसेज ही, उसको करिए, ट्रांसक्राइब करिए। उसके बाद चेक करने के बाद आप आउटलाइंस देखिए जो आपको नहीं आती होंगी, और आउटलाइंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको फिर रीराइट करिए पैसेज को। मे बी ओरिजिनल स्पीड पे भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ करके भी कर सकते हैं। तो तभी देखिएगा आपको अपने आप लगेगा कि जो पैसेज आपके लिए पहले मुश्किल था आपके लिए आसान बन जाएगा। और ये वर्ड क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। लास्टली, डिक्टेशन शुरू होने से पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। दैट्स ऑल। अब मैं शुरू करता हूँ डिक्टेशन। प्लीज़ गेट रेडी फॉर ए डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 43 फ्रॉम द लीगल मटेरियल। 5 seconds. Start. The crux of the defendant's contention is that the alleged agreement is not a valid agreement, as there was no consensus of the parties and neither was there any consideration for the same. Stop. The unstamped and unregistered document itself states that it would come into play only if a mutual consent petition was filed by 19th March 2008, and considering that no such petition was filed, the agreement is not applicable to the parties. Stop. It is also the defendant's contention that another agreement was made between the parties which incorporated certain differences and improvements upon the agreement, indicating that the latter agreement was never meant to be acted upon and is therefore not enforceable under law. Stop. The defendants have been submitted various other submissions on merit of the case and referred various decisions, but the same are not relevant for the purpose of deciding the present application. Stop. In the reply to this application, the plaintiff has submitted that the suit filed on his behalf has been filed for various reliefs, including but not limited to specific performance of the agreement. Stop. Therefore, without prejudice to his rights and for the sake of argument, even if the agreement is held to be not enforceable, there are other reliefs which have been prayed for which would need to be considered. Stop. According to the plaintiff, the agreement is submitted to be a spousal agreement which has been acknowledged and admitted by the defendants, and therefore the same is enforceable. Stop. Further, the said agreement was signed by both the parties, and therefore it is wrong to say that there was consensus between them. Stop. The contention of the plaintiff is that the defendants have filed multiple cases against the plaintiff, being a total of 9 cases in Delhi, India, and 1 case in California, USA, and have been constantly harassing the plaintiff and his family. Stop. According to the plaintiff, despite the interim order restraining the defendants from doing so,
the defendant has initiated fresh proceedings against the plaintiff in USA court for the similar relief. Stop. Therefore, in order to avoid oppressive proceedings, the present suit has been filed by the plaintiff. Stop. The details of pending litigation, being civil and criminal, between the parties in India and overseas have been elaborately mentioned in the plaint in para 9 and 5. Stop. In order to determine the present application, it is necessary to refer the plaint wherein there are specific averments as regards the agreement. The parties then tried to negotiate a settlement with the intervention of lawyers. Stop. The matter was getting stalled on the issue of financial settlement. Stop. This was over several months. Stop. Eventually, the parties met at the residence of a mutual friend and came to an agreement with regard to custody and financial settlements. Stop. It is relevant to mention that the custody arrangement was arrived at on the premise that the parties would be living next to each other in India. Stop. However, clearly that was changed in that they may not be able to live next to each other. Stop. The spirit of the agreement was that the children would have free and unobstructed access to their parents who would together be caregivers. Stop. There was no parenting plan with the plaintiff reduced to a weekend and vacation parent. Stop. On the contrary, the role for him would be that of an equally committed caregiver as the mother. Stop. Needless to say, the custody aspect of the agreement was never even looked at and acted upon. Stop. In the plaintiff has sought the relief on the basis of the cause of action. Stop. अब हम देखते हैं आउटलाइंस. सबसे पहले है क्रक्स में के डबल करना पड़ेगा आपको. ध्यान रखिएगा, अगर डबल नहीं करेंगे तो कुछ और पढ़ लेंगे आप. क्रक्स. उसके बाद है डिफेंडेंट होगा तो डी आधा करके और एफ की हुक देनी पड़ेगी, लेकिन जब प्लूरल होगा तो आपको एस ढंग से दिखाना है ताकि आप ढंग से पढ़ सकें और उसको ट्रांसक्राइब कर सकें. तो ये डिफेंडेंट है. उसके बाद है सेंसस. आप देख रहे हैं सेंसस कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर कन लगाना है तो कंसेंसस बनता है. वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है सेंसस कंसेंसस में, सिर्फ कॉन लगाना है, बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है. उसके बाद है फॉर द सेम. सिंपल है, मैंने दे दिया वैसे ही. आप चाहें तो इकट्ठा लिख सकते हैं और अलग लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज अनस्टैम्प्ड. उसको दो तरीके से लिख सकते हैं आप. अनस्टैम्प जैसे मैंने पहले दिखाया है, और दूसरा भी है ST हो, मतलब लूप ना करके आप ST पूरा लिख सकते हैं टी को, और अनस्टैम्प्ड वैसे लिख सकते हैं. उसके बाद अनरजिस्टर्ड है. नेक्स्ट इज म्यूचुअल. उसके बाद कंसेंट है. ये कंसेंट बहुत छोटा वर्ड है, जैसे सेंट के ऊपर कौन लगाना. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं, तो हमें लगाना भी ध्यान से है, पढ़ना भी ध्यान से है, और ट्रांसक्राइब भी ध्यान से करना है. तो जब तक तीनों चीज़ों का तालमेल नहीं होगा तब तक आउटपुट प्रॉपर नहीं निकलेगी. उसके बाद है इनकॉर्पोरेटेड. अब जब इनकॉर्पोरेट होगा तो आप आधा कर देंगे PR, लेकिन कॉर्पोरेटेड होगा तो पूरा करने के बाद आपको T हाफ करना है. नेक्स्ट आउटलाइन इज डिफरेंसेस जब होगा तो आपको S बनाना पड़ेगा, डबल S बनाना पड़ेगा, और जितना आप अच्छा बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा. नेक्स्ट वर्ड इज लैटर. एक होता है लेटर, एक होता है लैटर. फॉर्मर एंड द लैटर.
तो लेटर जो है उसको आप, वैसे तो ग्रामेटिकली जब आप पढ़ेंगे तो भी पता लग सकता है, बट मैंने इसमें नोइंगली अबव द लाइन लिखा है और ए का डॉट दिया है ताकि आप उसको लेटर पढ़ सकें। और स्पेलिंग इसके हैं LATTER। उसके बाद है कनेक्टेड, सॉरी एक्टेड। एक्टेड है, इसी में अगर कनेक्टेड होगा तो कौन जो है के पहले लगेगा, कौन का डॉट, तो वो आपको ध्यान रखनी है छोटी चीज़ें। एक्टेड। उसके बाद है एनफोर्सेबल, BL पूरा आएगा इसमें। नेक्स्ट इज प्रेजुडिस, PR और J हाफ, प्रेजुडिस। उसके बाद है फॉर द सेक ऑफ, आप चाहें तो इकट्ठा लिख सकते हैं और अलग देखें, आपकी मर्जी है। फॉर द सेक ऑफ इजीली पढ़ा जा सकता है, अगर आप ढंग से लिखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वर्ड स्पाउसल। स्पाउसल नया वर्ड आया है, SPOUSAL, वो स्पाउस से कनेक्टेड होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलिफोर्निया, इसकी आउटलाइन जैसे मैंने दी है वैसे, या आपको जो कन्वीनियंट लगे लिख लीजिए, कैलिफोर्निया। उसके बाद USA है, USA की भी आउटलाइन ऐसे लिखें, चाहे आप USA इंग्लिश में लिख लीजिए, नो इशू। उसके बाद है हैरेसिंग। हैरेसिंग में H अपवर्ड जाएगा, HR, उसके बाद SNG। नेक्स्ट इज रिस्ट्रेनिंग, सिंपल वर्ड है रिस्ट्रेनिंग, और उसके बाद है इनिशिएटेड। नेक्स्ट आउटलाइन है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ में प्लेंट जैसे लिखते हैं उसके साथ F लगाइए, रीज़न बीइंग के प्लेंट भी आता है वर्ड और प्लेंटिफ भी आता है। अगर आप F नहीं लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। प्लेंटिफ में F लगा दीजिए और प्लेंट में सिर्फ प्लेंट रहने दीजिए, F की ज़रूरत नहीं है। अप्रेसिव, OPPRESSIVE, अप्रेसिव आप, मैंने जैसे बताया, अबव द लाइन लिखिए और उससे पहले आप डैश का वॉवल लगाइए। ओवरसीज सिंपल है। इलाबोरेटली, इलाबोरेटली में भी इलाबोरेट लिख के L अपवर्ड। नेक्स्ट आउटलाइन मैंने दी आपको डिटरमाइन और डिटर्मिनेशन। डिटरमाइन में MN दिखाइए, डिटर्मिनेशन में आप R के साथ शन दिखा सकते हैं। शॉर्ट आउटलाइन है डिटर्मिनेशन की। नेक्स्ट है वर्ड एवरमेंट्स। एवरमेंट्स सिंपल है, VR और MENTS, और इसके पहले भी V से पहले आप चाहें तो डॉट दिखा सकते हैं बीच में, सेंटर में। नेक्स्ट आउटलाइन एज रिगार्ड्स थी, वेरी सिंपल। उसके बाद लॉयर्स, उसके बाद स्टाल्ड। स्टाल्ड वर्ड आया एक, STALLED, किसी चीज़ को रोक देना। तो स्टाल्ड अगर आप लिखेंगे ढंग से तो पढ़ेंगे ढंग से। जैसे हम डिटेल्ड में L डाउनवर्ड करते हैं वैसे ही आपको स्टाल्ड में भी करना है। उसके बाद इवेंचुअली आया था, इवेंचुअली की पूरी आउटलाइन आएगी। नेक्स्ट इज रेजिडेंस। रेजिडेंस में DNS दिखाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज कस्टडी। कस्टडी में T और D प्रॉपर लिखिए, दोनों नीचे तक। अगर आप एक लिख लेंगे आउटलाइन तो कुछ और पढ़ लेंगे, कॉस्ट या कुछ और पढ़ लेंगे। कस्टडी में TD पूरा दिखाना है नीचे तक। इसके बाद एक वर्ड आया था प्रीमाइज। प्रीमाइज बोलते हैं कंक्लूजन किसी चीज़ का, प्रीमाइज। प्रीमाइज में आप I ज़रूर दीजिए, और नहीं तो आप प्रॉमिस या कुछ और पढ़ेंगे। I विल शो कि माइस है, माइस मीन्स प्रीमाइज। तो उसके बाद आउटलाइन है, मैंने दी है आपको 3 आउटलाइंस दी हैं। एक स्पिरिट की दी है पहले। स्पिरिट में SPRP हाफ होगा, सेपरेट में P पूरा होगा, T डलेगा। स्प्रेड में P पूरा होगा, उसके बाद D डलेगा। ये 3 फर्क आप देख लीजिए, क्योंकि यही मिस्टेक्स होती हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है जिसका केयरफुली। उसके बाद वर्ड आया था अनऑब्स्ट्रक्टेड। अन अलग ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड उसके साथ लिखना पड़ेगा, और टाइपिंग के टाइम आपको अनऑब्स्ट्रक्टिव इकट्ठा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सेस। एक्सेस देख लीजिए, एक्सेस ऐसे लिखना है। उसके बाद वर्ड आया था केयर गिवर्स। केयर गिवर्स, तो केयर और गिवर्स अलग ही लिखना पड़ेगा, आउटलाइन इकट्ठी नहीं है। और आप KR के साथ G जोड़ना चाहें तो वो आपकी चॉइस है।
नेक्स्ट वर्ड आया था पेरेंटिंग, पेरेंट के बाद डॉट लगाइए, पेरेंटिंग। उसके बाद आया है वर्ड वीकेंड। वीकेंड सिंपल है, मैंने फिर भी बता दिया है। इक्वली को आप दो तरह से लिख सकते हैं, KL ऑन द लाइन करके, इक्वल का KL करके और डॉट लगाइए नीचे, या फिर आप KW का बना के हुक इक्वली L अपवर्ड दीजिए। कमिटेड, जैसे कमेटी लिखते हैं, कमिटेड में आपको टेड अलग दिखाना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी रहे। और लास्ट जो है आपकी आउटलाइन है नीडलेस टू से। तो नीडलेस टू से को आप ज्वाइन करना चाहें तो मैंने बता दिया है, और सिर्फ नीडलेस भी मैंने बता दिया है, और टू से अलग लिखना चाहें वो आपकी चॉइस है। तो यही आउटलाइंस थी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है हर आउटलाइन को ध्यान से समझिए, करिए। ये मत सोचिए कि ये नहीं आएगी या क्या आएगी, वो नहीं देखते। हमारी नॉलेज अपडेट करनी है हमें, वो हमें करनी चाहिए। कोई भी वर्ड कब किस फॉर्म में आ जाएगा वो हमें पता नहीं होता। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।